meeting is being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज हमारा 7वां सेशन है मैथ टू इंडस्ट्री बूट कैम्प का। आज जो टॉपिक हमारा है वो मैथमेटिक्स एट द इंटरफेरेंस ऑफ न्यूरो साइंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हमारे पास हमारा गेस्ट स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद लियाकत रज़ा। आप डायरेक्टर हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। आपका जो पीएचडी है फ्रॉम शेरिड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन जर्मनी से। पोस्ट डॉक फेलोशिप इन्होंने किया हुआ मॉलिक्यूलर न्यूरो फिजियोलॉजी फ्रॉम एपिलेप्सी सेंटर ऑफ लून यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्वीडन से, MIHS फ्रॉम UK, MDNF नीदरलैंड and MEBPS from Sweden. Currently working as a director academics at City Institute of Health Sciences. Professor of pharmacology and consultant at the Family Care Clinic North Karachi, ex-dean faculty of pharmacology, Hamdard University. Associate editor of the following international research journals: BMC Neuroscience, BMC Pharmacology and Toxicology. Area of research including epilepsy, Parkinson disease, pain, depression, etc. डॉक्टर साहब, आपको इस सेशन में वेलकम करते हैं और मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए काइंडली। स्क्रीन शेयर जी डॉक्टर साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी जी श्योर। ओके, am I audible?
चलिए, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am thankful to Dr. Ilyas to provide me a chance to talk about the interesting and but a complex topic. So the topic is basically the mathematics and the neurosciences interface. What is the present, future, and the past? So हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर we'll talk about a little bit about neuroscience and the future of the neuroscience, plus what is the relation someone can you mute? Please mute your mics. Thank you. अब मैं आपको वापस होस्ट कर देता हूँ ताकि आप उसको जो है वो पॉसिबल डॉक्टर साहब इनको म्यूट कर दीजिएगा। जी जी मैं एग्जैक्टली इनको म्यूट कर दें, अगर कोई ज़्यादा डिस्टॉर्शन होते तो फिर उनको रिमूव कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए ओके परफेक्ट। मैं आपको साथ में होस्ट भी बनाऊं ताकि आप फिर मैनेज कर लीजिएगा ना। डॉक्टर यासिर होस्ट हो गए, माजरत। आप दोनों के नाम डॉक्टर इलियास के बजाय डॉक्टर यासिर जो है वो उनको मैसेज करके आपको कह देंगे, आपको होस्ट बना देंगे। माजरत। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड एंड थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन। First off, before starting what neuroscience is, what mathematics is, let me briefly, because the audience might be from all the age group, might include students, might include teachers, professors. So just a brief introduction about the pool of sciences. So if you talk about the various field at today, so we can divide the division of education in 4 segments. So first is like art and humanities, and then second is the medical sciences. Third would be the mathematics and sciences, and the fourth would be the social sciences. When we talk about the mathematics and its division, so we have a lot of domain and the natural sciences and the mathematics, for example, biochemistry, computer science, environmental sciences, nutrition, exercise, even psychology comes under a domain of social sciences. Some of the people also categorize the psychology in the domain of natural sciences. So we are actually basically going to connect mathematics and the medical sciences today. And the medical sciences, we are going to focus on the neurosciences. Okay, so what the neuroscience is, in a very concise and a very simplest way, the behavior of the human being, which we study using a physical entity, that is a nervous system. जो इंसानी बिहेवियर होता है, उसका जो कनेक्शन होता है के साथ, उसको आप स्टडी करते हैं विद द रिलेशन ऑफ अ फिजिकल एंटिटी, दैट इज अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन भी आता है, नर्वस सिस्टम के आपके जो है वो हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। इसमें एक जब हम थ्योरी की बात करते हैं, अगर हम 40 years and 50 years if you go back and see the different perspective about the mind, तो उस वक्त माइंड एंड ब्रेन को 2 डिफरेंट एंटिटी जो है वो माना जाता था। लेकिन जो मॉडर्न न्यूरोसाइंसेज है, इसने कॉन्सेप्ट मॉडिफाई किया है, और अब जो आजकल की जो नई थ्योरीज और नई रिसर्चेस के बाद हम कह सकते हैं कि माइंड भी एक्चुअल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो फिजिकल नहीं है, बल्कि उसकी भी फिजिकल बेसिस हैं। तो दिस इज द पास्ट के माइंड जो है वो फिजिकल बेसिस के बगैर था, अगर हम पिछली थ्योरी के ऊपर जाएं। लेकिन जो मॉडर्न न्यूरोसाइंसेज है, उसने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज किया, और उसके हिसाब से जो है वो करंटली अगर हम न्यू थ्योरीज पे जाके देखेंगे तो आपको माइंड भी इवन जो उसकी फिजिकल बेसिस जो नजर आएंगी, और उस फिजिकल बेसिस में जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो आपका ब्रेन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कोरिलेट करें अपनी डेली लाइफ के साथ, आप देखते हैं कहाँ है वो ट्रेवल करते हैं गाड़ियों पे, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, बसेज हो, ट्रेन हो,
आपको पता है ये चलती है किसी चीज से, उसको एक एनर्जी और ड्राइविंग फोर्स चाहिए। वो क्या है, मिसाल के तौर पे आप जो भी उसमें फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैस के फॉर्म हो या इलेक्ट्रिकल जो है वो उसके पास स्टिमुलस मौजूद हो, तभी वो व्हीकल आपका मूव करता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, इसी तरह आपके पास जो भी बिहेवियर जनरेट होता है, जो परसेप्शन जनरेट होती है, इसकी भी कोई ना कोई फिजिकल बेसिस है। जिस तरह आप गैसोलीन किसी गाड़ी में डालते हैं, चाहे उसमें आप पेट्रोल डालें चाहे डीजल डालें, कोई भी फ्यूल डालें, एयरप्लेन के अंदर आप जो है वो हाई सुप्रीम लेवल का क्वालिटी का जो है वो आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तब वो व्हीकल अपना मूव करना शुरू करता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं माइंड के रेफरेंस पे, तमाम चीजें आपके में कहीं ना कहीं फिजिक्स रखती हैं। के इस लेक्चर जो है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कुछ चीजें बहुत होगी। उसकी वजह ये कि जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स की वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको न्यूरो साइंसेस की जो प्योर बायोलॉजिकल बेसिस थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ अपने एंड का कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि जाहिर बात है बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आप दो डिफरेंट जो अलग डोमेन्स हैं उसको आप मर्ज करके जो है प्रेजेंट करें। तो उसमें जाहिर बात है जिनको मैथमेटिक्स की जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती या मसला नहीं है, न्यूरो साइंसेस वाले से जब हम डिफाइन करने जाएंगे तो उसकी टिपिकल फिलोसफिकल बेसिस है वो बहुत टिपिकल लगेंगी। लाइकवाइज बायोलॉजी के स्टूडेंट को जब मैथमेटिकल डोमेन पे हम बताएंगे कौन कौन से जो वो आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क की बात करें, कॉम्पिटेशनल न्यूरो साइंस की बात करेंगे, तो उसके जो डिफरेंट किस्म के आपको जब फिलोसफीज बताई जाएंगी तो वो बहुत ही टिपिकल लगेंगे। लेकिन बहरहाल हम उसको बहुत ही सुपरफिशियल लेके जो है बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस लेक्चर में से यू विल गेट समथिंग। अच्छा जनाब, सबसे पहले उन लोगों के लिए कि जो कि बायोलॉजी के नहीं है, मेडिकल फील्ड से हट के हैं, वो मिसाल के तौर पे जो वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स वगैरह डोमेन के हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे आपको, चूंकि हमने इंटरफेस की बात की, हमने कनेक्ट करना मैथमेटिक्स की फील्ड को अपने नर्वस सिस्टम और इस न्यूरो साइंस के साथ। तो सबसे पहले किसी भी चीज की बेसिस जानने के लिए पता होना चाहिए कि वो चीज किस चीज से मिलकर बनी है, एक वो फंक्शन किस तरह करती है, और उस फंक्शन को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी तब तक आप जो है वो इन चीजों को जो है वो कभी भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग बना किस चीज का है। ये जो सेल्स की हम बात करते हैं, ये सेल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, जो दिमाग के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसमें कोई फ्लूइड मौजूद है या नहीं है, दिमाग के अंदर जो स्पेसिस हैं वो किस किस्म की हैं, इससे जो है वो कौन कौन सी चीजें पास हो सकती हैं, कौन सी चीजें फ्लो हो सकती हैं, कैसे कोई चीज जो है वो कम्युनिकेट हो रही होती है, उसकी क्या बेसिक है। तो जारी बात है दिमाग के अंदर पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड है या केमिकल बेस्ड है। केमिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में आपके जो है वो आयंस आ जाते हैं। तो ये आयनिक फ्लो जो है वो एक मैसेज को दूसरे मैसेज पे लेके जाता है, लेकिन किस तरह, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे इफेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगी। किस तरह आ जाएगी मैथमेटिक्स, उसको हम कोरिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी हम दिमाग को स्टडी करने जाएं तो जो हमने अभी पॉइंट बताए कि आपको उस नर्व सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नर्व सेल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि नर्व कैसे प्रोपेगेट करेंगे सिग्नल को, कैसे ये फास्ट कम्युनिकेट कर सकेंगी। इसी तरह जो है वो अगर आपने इनको स्टडी करना है इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप उस न्यूरॉन को कैसे आइसोलेट करके उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जो है वो स्टडी करेंगे, और फिर उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर आप किस तरह अपने दिमाग के फंक्शन को कोरिलेट करेंगे कि आया आपका दिमाग नॉर्मल सिंक्रोनाइज्ड है या हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, या बेसिकली जो आपकी न्यूरोनल कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट हो गई है। तो वी विल लुक एट इन द कमिंग स्लाइड के बेसिकली हाउ वी गोना कनेक्ट दिस पॉइंट टुगेदर। अच्छा जी, उनसे वादा करता हूं कि वो कभी निराश नहीं होंगे। ये अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से आई थिंक एक ऑप्शन होता है कि जो अफराद डायरेक्ट लॉग इन हो रहे हो उनके माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो, चेक करें सेटिंग के अंदर ना, तो फिर आई थिंक कोई ज्वाइन करेगा तो वो माइक की वजह से डिस्टॉर्शन आए। खैर बार, तो सेकंड पॉइंट वाज कि आप उस न्यूरॉनल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए आपको न्यूरॉन को आइसोलेट कैसे करना है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉनल कम्युनिकेशन हो रही है दो डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप इन टर्म के, जो नर्व का साइज है, जो कंडक्शन वेलोसिटी है,
जो एंगल बनता है बिटवीन, जब हम बात करते हैं जब भी कोई चीज आपस में एक कनेक्शन बनाती है, वो कनेक्शन किन पॉइंट से बनाती है, जो गैप्स मौजूद हैं उन गैप्स के अंदर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस से हटके फिर उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि आपके पास एंगल क्या डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल और वीक सिग्नल के मल्टीपल बेसिस होते हैं, उसमें एक पॉइंट वो जो कनेक्शन बिटवीन द टू, या जो सिनेप्स बन रहे हैं, जो दो न्यूरॉन्स मिल रही हैं, ये ऑल टुगेदर एक पार्ट काम कर रहा है, उसमें जो डिफरेंट मैथमेटिकल पॉइंट्स आते हैं, डिफरेंट कंडक्शन वेलोसिटी के रेफरेंस से, जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बन रहा है उसके रेफरेंस से, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग जो है परफॉर्म कर रहा होता है, इसकी पूरी मैथमेटिकल बेसिस हैं। अच्छा, हम जब चूंकि बात कर रहे थे कि हम थोड़ा हिस्ट्री को टच करेंगे, फिर हम जो है करंट सिचुएशन की बात करेंगे, फिर हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं 50 साल 60 साल पीछे, तो आपके पास आपके वो बेसिस अवेलेबल नहीं थी स्ट्रांगली कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि जो न्यूरॉन्स जो है वो कितनी स्पीड के साथ किस अपनी कम्युनिकेशन करती है और किस तरह करती है। आपके पास अजम्पशंस तो थी, लेकिन जब से न्यूरल नेटवर्क यानी एएनएन की बात, अब उसके हम टाइप्स बात करेंगे लास्ट पार्ट में, कि जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं हम, ये किस तरह डेवलप हुए थे और क्या जो है आज के दौर में इनकी इम्प्लीकेशन जो है वो डायग्नोस्टिक लेवल से लेके आपकी प्रेडिक्शन, जब हम बात करते हैं कि डिजीज कौन सी हो सकती है, क्या इसका रोल है, प्लस कैसे जो है वो आज की करंट ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक्स के अंदर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है। फिर जब आपको ये सर्किट का पता लग जाता है कि इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैथमेटिकल कनेक्शंस का, तो बहुत आसानी के साथ आप किसी भी ब्रेन एक्टिविटी को मैप कर सकते हैं, और उस मैपिंग की बुनियाद पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बिहेवियर तब्दीली आ रही है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मसलन ये डिप्रेशन का मरीज हो सकता है, या एंजाइटी की तरफ जा रहा है, या स्ट्रेस में जा रहा है, या मैनिक हो रहा है, यानी जो भी उसकी बिहेवियर में तब्दीली, बहुत ही एंगर उसके डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटेबल हो गया है, ये सारी की सारी चीजें जो वो आप मैथमेटिकल बुनियादों पे, यानी आप जब हम मैपिंग करते हैं ब्रेन मैपिंग की, न्यूरोनल मैपिंग की, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन के साथ मैथमेटिक्स की आप वो रिलेट भी कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको ये जब हम बात करते हैं बिल्कुल अर्ली फेज के, जब आपके पास जो है वो बिल्कुल प्लेन ट्रेडिशनल स्टेनिंग टेक्निक होती है मैथमेटिक्स के लोगों के लिए, कि जब भी आपने किसी भी फिजिकल चीज को स्टडी करना हो, ऑब्जर्व करना हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप कैसे देखेंगे, तो आप उसको बेसिकली कलर करते हैं, उस कलर करने को बेसिकली हम कहते हैं स्टेनिंग। तो पहले जो है वो ट्रेडिशनली स्टेनिंग की जब हम बात करते हैं, तो आपके पास बिल्कुल प्लेन स्टेनिंग मौजूद थी, जिसके जरिए आप सेल्स को जो है वो स्पेसिफिक डाई से स्टेन करके फिर चेक करते थे कि भाई वो राउंडेड हैं, सिलेंड्रिकल हैं, या मसलन डी शेप हैं, अगर वो एलोंगेटेड हैं तो सर्कुलर एंड के साथ हैं, या उनकी टेल किस तरह की है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं न्यूरॉन्स की, तो हमें ये पता लग जाता है कि जब न्यूरॉन पे एक सिग्नल आएगा, यानी जो न्यूरॉन बोलते हैं दिमाग के एक इंडिविजुअल खलिए को, यानी सेल को, जब वो सेल पे एक सिग्नल आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकली जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के अंदर कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है, ये कितना टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने पे, ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग जो है डिपेंड करती है कि वो सेल का डायमीटर कितना है, उस न्यूरॉन की लेंथ कितनी है, वो न्यूरॉन जो है वो अपने साथ कनेक्शन बनाती है, वो एक कनेक्शन 1 to 1 कनेक्शन बनाती है, 1 to 100 कनेक्शन बनाएगी, 1 to 1000 कनेक्शन बनाएगी, क्योंकि आपके कुछ खलिए ऐसे होते हैं कि जो 1:1000 के करीब कनेक्शन, यानी एक सेल 10, 100 और 1000 तक डिफरेंट सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये कैसे प्रेडिक्ट होगा, ये आपके पास जब मॉलिक्यूलर लेवल पर इनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की पता होती हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रापोलेट करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाली सेल जो है वो 10 या 100 या 500 या इवन 1000 डिफरेंट सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करके एक स्ट्रॉन्ग सर्किट जो है वो फॉर्म कर सकती है, या इतनी स्पीड के साथ इस मैसेज को जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के ऊपर काम किया था, उसमें रमान कजाल एंड बेसिकली कैमिलो गोल्जी, ये दो साइंटिस्ट, एक इटालियन साइंटिस्ट इनमें से, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उस जमाने में जारी बात है माइक्रोस्कोप भी नहीं थी, उस जमाने के अंदर जो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम बात कर रहे हैं आपसे 200 साल पुरानी, या मतलब 100 साल पुरानी, 100-150 साल पुरानी। तो इन लोगों ने बेसिकली एफर्ट की, और इन लोगों ने जो है वो सिल्वर और मरकरी डाई को इस्तेमाल किया, और जो दिमाग के सेल, यानी जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, दिमागी सेल्स को उन्होंने स्टेन करके
कुछ बुनियादी प्रॉपर्टी बताई। तो उस जमाने में तो उनको जो नजर आया कि भाई कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे एक लंबी सी धूम है, बीच में एक ऐसी चीज आ जाती है कि जो आपकी एक राउंडेड शेप है, उसको फिर उन्हें डिफाइन करना शुरू किया। जो एंड पे आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसके सेल के जो डेंड्राइट होते हैं, जो लंबी सी बीच में धूम है, इसको उन्होंने एक्सॉन का नाम दिया, और फिर बीच में उन्होंने जो है वो सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इन साइंटिस्ट ने जो है दोनों ने बेसिकली स्टेनिंग प्रोसीजर जो कि बिल्कुल बेसिक स्टेनिंग का था, और इसीलिए जो है उसको गोल्जी मेथड्स का जो नाम है साइंटिस्ट का, गोल्जी, रमान कजाल और कमीलो गोल्जी। तो आपने फर्स्ट टाइम जो है वो बेसिकली ये जो है वो रमान कजाल की तस्वीर है। इसने बिल्कुल जो प्लेन माइक्रोस्कोप 90s में डेवलप हुई थी उसके जरिए स्टेन करके सेल की बुनियादी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके जो है वो ये पिक्चर अभी भी अगर किसी ने देखनी है तो वो ओरिजिनल जो इसने ड्राफ्ट की थी बेसिकली, यानी ड्रॉ की थी बेसिकली, वो इस वक्त जो है वो लंदन के म्यूजियम में मौजूद है, वो वहां पर भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो आप डेंड्राइटिक पार्ट देख रहे हैं, जो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो बाल बाल से, इसको डेंड्राइट कहा जाता है, और जो नीचे पार्ट आ रहे हैं एलोंगेटेड, ये एक सोमा कहा जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो बेसिकली सोमा पे आता है, और सोमा उसको आगे पास करती है डेंड्राइट, और फिर डेंड्राइट आप देख रहे हैं गुच्छे की तरह ब्रांच्ड है। ये ब्रांच क्या करते हैं, दूसरे वाले सेल के साथ जाके अपना कनेक्शन फॉर्म करते हैं, और इस तरह जो है वो आपकी न्यूरोनल कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है। फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आपके पास फ्लोरेंस टेक्निक्स आ गई, आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोपी से एडवांस लेवल माइक्रोस्कोपी आ गई। तो आप सेल के यानी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह देखने के काबिल हो गए। इसको कहा जाता है फ्लोरेसेंट लेबलिंग। डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स को स्टडी करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उनको स्टेन करने के लिए डिफरेंट किस्म के फ्लोरोफोर्स होते हैं। अगर आप पर्टिकुलर प्रॉपरली फ्लोरेसेंस के डाइज या एंटीबॉडीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वाली नर्व, वो वाली न्यूरॉन स्टेन नहीं होगी। जब स्टेन नहीं होगी तो आपको ब्लैक पिक्चर नजर आएगी। ये सारी की सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ कि इनकी मैथमेटिकल बेस है, कि अगर आपने एक 1 माइक्रोमीटर एरिया में चेक करना है कि कितने न्यूरॉन मौजूद हैं, तो आपको न्यूरॉन टाइप, न्यूरोनल स्ट्रक्चर, न्यूरोनल साइज, न्यूरोनल लेंथ, उसका डायमीटर अगर पता होगा, ये सारी की सारी क्या मैथमेटिक्स है। इस डायमीटर की बुनियाद पर कंडक्शन वेलोसिटी निकालते हैं हम। इसकी जो है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस की बुनियाद पर हम इसको जो नंबर ऑफ साइनेप्स बनेंगे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग साइनेप्स बनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग सर्किट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग सर्किट होगा उतना ही सिग्नल जो है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। तो इसकी कोरिलेशन आपके पास मेमोरी से भी बनती है, इसकी कोरिलेशन आपके पास जो लर्निंग से भी बनती है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद आपके फ्लोरेंस टेक्निक आई। तो आप देख सकते हैं जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट एक न्यूरॉन है जिसका आप पूरा जो ग्रीन कलर में अपने लेफ्ट पैनल पे देख रहे हैं, ये न्यूरॉन आपको नजर आ रही है कि इसके पीछे डिफरेंट किस्म के और सेल्स हैं जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर के न्यूरॉन आपको लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके डेंड्राइटिक हार्बर्स हैं सारे। ये एक सेल है, लेकिन ये एक सेल जो इसके साथ अटैच ना जाने, क्योंकि इसमें जारी बात है सिर्फ 2 चीजों को लेबल किया गया, जो कि एक ग्रीन नजर आ रहा है न्यूरॉन और पीछे जो है रेड में नजर आ रही है। लेकिन वो न्यूरॉन जो इसमें डाई नहीं, जो स्टेन नहीं हुई होंगी, ये सब जो है वो डिफरेंट डेंड्राइट उससे जो है वो कनेक्शन बना रहे होंगे, जो कि आपको एक पर्टिकुलर मजीद एंटीबॉडी और डाई, क्योंकि हर सेल को स्टडी करने के लिए उसकी स्पेसिफिक जो है वो आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं। तो उन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को जब आप डाई में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो स्टेन होती है, अदरवाइज स्टेन नहीं होती। तो ये जो है वो आपने 2 डिफरेंट न्यूरॉन को क्या किया है, ओवरलैप किया है 2 डिफरेंट एंटीबॉडीज से। लेकिन अगर आप ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि कौन से, क्योंकि आपके जो दिमागी खलियों के डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इसमें न्यूरॉन और ग्लियल, तो ग्लियल सेल्स अलग होते हैं न्यूरोनल, यानी जब हम न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं तो आपके डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो ये कैसे नजर आएंगे, तो इस जो आप अपने राइट पैनल पे देख रहे हैं, ये फ्यूज न्यूरॉन कहला रही है, यानी 2 डिफरेंट न्यूरॉन आपस में जो है वो बहुत ही क्लोज टुगेदर हैं, ये कम्युनिकेट करने के करीब है। तो इस कंडीशन को बेसिकली फ्यूज जो है वो न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो कि माजी में पॉसिबल नहीं था कि आप इस लेवल पे जाके जो है वो इस लेवल पे जाके आप जो है वो स्टडी कर सकें। लेकिन अब आपके पास वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके जरिए आप इन न्यूरॉन्स को बआसानी स्टडी कर सकते हैं। न्यूरोमॉर्फो ये बेसिकली जो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि आप ये जो ये टाइम चलता जा रहा है वो किस बेसिस पे, इसके पीछे कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, वो ये बयान कर रही है। जब अभी दोबारा आएगा फिर दोबारा गौर करिएगा कि जब आप न्यूरॉन कम्युनिकेट करना शुरू करती है तो अब वो अपने एडजेसेंट सेल से कैसे, देखें बिल्कुल एक न्यूरॉन आई, एक्साइट होना शुरू हुई, उसके डेंड्राइट्स एक्सपेंड हुए, उससे एडजेसेंट सेल के ऊपर ये क्या हो रहा है, दिमाग का एक हिस्से से जो सिग्नल स्टार्ट हुआ था वो स्प्रेड हो रहा है ओवर द टाइम।
ये कितनी देर में हो रहा है, कितने एरिया को जो है ये कवर करेगा अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, ये सारे के सारे मैथमेटिकल प्रोसेसिंग है जिसके जरिए आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, एक वीक सिग्नल हो, एक डेड सिग्नल हो, उसका इम्पैक्ट एडजेसेंट सेल पे, नर्वस सिस्टम पे क्या निकलेगा। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? दिमाग की वो सारी बीमारियां कि जिसके अंदर कम्युनिकेशन एब्रप्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एपिलेप्सी की बात करते हैं, एपिलेप्सी के अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन डेवलप होती है, जो अगर हम बात करते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी की, तो दिमाग के एक पार्ट में इसका सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन वो दूसरे हिस्सों में और दूसरे आपके दिमाग दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, तो वो एक हेमिस्फीयर से शुरू होकर वो उसके सिग्नल दूसरे हेमिस्फीयर में चले जाते हैं। ये प्रोपगेशन को स्टडी करने के पास आपके लिए कोई ऐसी चीज मोडेलिटी नहीं थी, बजाय इसके कि आप उसको आप उसको जो है वो यानी स्टडी कर सके रियल टाइम में। तो आपने कॉम्पिटिशनल मॉडल डेवलप किए कि फॉर एग्जांपल अगर दिमाग के एरिया 1 के अंदर एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि वीक सिग्नल था, तो वो कितने देर तक और कितने लॉन्ग अरसे, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन और कितने वाइड एरिया में स्प्रेड हो सकता है। इसी तरह जो है जब आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल इनपुट देंगे अपने सिस्टम के अंदर, और ये सारे क्या प्रोसेसिंग है पीछे कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत, जिसमें आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन यानी न्यूरॉन की टाइप, न्यूरॉन की लेंथ, उसका डायमीटर, एरिया ऑफ द ब्रेन, इन तमाम को, उसकी सिग्नलिंग प्रॉपर्टी, कितना उसका एम्पलीट्यूड होता है, कितनी उसकी, कुछ न्यूरॉन्स हैं जो फास्ट स्पार्किंग न्यूरॉन्स कहलाती हैं, कुछ न्यूरॉन है स्लो स्पार्किंग न्यूरॉन्स कहलाती हैं, हर एक का रेट ऑफ फायरिंग अलग है, हर एक का रेट ऑफ साइनेप्स फॉर्मेशन अलग है। तो वो सारा का सारा आपने कंप्यूटर प्रोग्राम में एक प्रोग्राम किया है और मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है कि अगर आपके दिमाग में एबनॉर्मल सिग्नल जनरेट हो तो आप किस तरह का, आपके पास इसे प्रोपेगेशन कितने एरिया में हो सकती है, कितनी फास्ट हो सकती है। इसी तरह परसेप्शन की बात करें, इस तरह हम बात करें मिसाल के तौर पे जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशन को आपने स्टडी करना है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप गुस्से में आ गए, आप स्ट्रेस में, तो किस तरह प्रोपेगेशन होती है, ये सारी की सारी स्टडी अब आपके पास सब मैथमेटिकल बेस्ड है। तो जो अभी हम उसकी कैलकुलेशन और उसके जो फार्मूलाज और मॉडल हैं उस पर इसलिए नहीं जा रहे कि बहुत टिपिकल हो जाएगा उन लोगों के लिए कि जो मेडिकल साइंसेस के लोग हैं, चूंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं अपने भी और कुछ डॉक्टर्स भी, तो आई थिंक उनके लिए ये वाला पार्ट जो मैथमेटिकल पार्ट है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही लंबी और पेचीदा किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम ये मॉडल जो है वो यानी स्टडी करते हैं और फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। खैर बहरहाल वापस आते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो चीज आप नॉर्मल और फिर एडवांस माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आप माइक्रो और नैनो लेवल पर जाके जो है वो इसको स्टडी करते हैं, एक हाई टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये हाई रेजोल्यूशन होती है, इसमें आप सेल के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल, जैसे आप ये जो देख रहे हैं अभी, ये जो आप इसका जो यूनिट है बेसिकली ये एक्चुअल कंप्यूटर नजर आ रहा है लेकिन ये माइक्रोन मीटर है। सो वन, दिस इज जो आप अपने देख रहे हैं कि 1 माइक्रोन मीटर एरिया आपको कितना बड़ा नजर आ रहा है, ये इस वजह से कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये आपके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट कर सकती है, बहुत ही क्लियरली आपको रेजोल्यूशन नजर आती है। तो आप इसमें सेल के अंदर जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एक स्टैटिक फोटो है, अगर आप इसको रियल टाइम में देखेंगे जाके तो बाकायदा इसमें जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसको स्टडी कर सकते हैं, इसमें जो आयनिक फ्लो है उसको स्टडी कर सकते हैं, यानी सोडियम आयन कितना फ्लो कर रहा है, पोटाशियम आयन कितना फ्लो कर रहा है, जो चार्ज हैं यानी जो पोलैरिटी है उसकी मोबिलिटी, जब आप इसको डिफरेंट किस्म के जो है वो इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करते हैं, अगेन आ जाता है इंजीनियरिंग साइड का, तो वो जो डिफरेंट ट्रांसमीटर्स होते हैं और उसके अंदर जो डिफरेंट कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई करके बहुत ही लार्ज स्केल पर उस सिग्नलिंग को जो है वो आप बाकायदा स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर सारी की सारी साइंस और फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब जब आपके पास आप ये जो हमने जितनी टेक्नोलॉजी की बात की, जो अब आज के दौर में आपको सेल की तस्वीर, जैसे आप अगर हम वापस पीछे जाएं तो उस वक्त देखें आपको सेल सिर्फ इस तरह नजर आते थे, अब ये किस तरह इनके स्ट्रक्चर अंदर क्या है वो कुछ हमें नहीं मालूम था। जैसे आप ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्कुल जैसे अगर मेरा कर्सर नजर आए, ये जो एंड के हम बात कर रहे हैं, तो इन एंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन होती हैं, कनेक्शन प्रोटीन होती हैं, सिनेप्टोजन, ये नजर नहीं आ रहा। इवन जब हम इस लेवल की बात करते हैं फ्लोरेसेंस लेबलिंग, तो फ्लोरेसेंस लेबलिंग की भी लिमिटेशन है, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं यानी इमेजिंग की बहुत ही आला फॉर्म की तरफ,
तो आपके पास सेल का एक एक स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल, आज जिस तरह आप अपनी तस्वीरें ले रहे होते हैं एक अच्छे आईब्रो कैमरा से, आपको अपनी फीचर सारे नजर आते हैं, ये आईब्रो इस तरह है, ये बाल इस तरह है, कलर इस तरह है। तो अब आप सेल को इजीली जो है वो आपने पूरा का पूरा इसके अंदर जो माइक्रो स्ट्रक्चर मौजूद हैं वो किस तरह के हैं, किस कलर के हैं, किस तरह आपने जो है वो उनको प्रॉपर्टी सब आपके पास जो है वो ये पूरा, ये एक सिंगल सेल है। आप उनमें से आप एक सेल को स्टडी करने दे जाएंगे, उस सेल के अंदर आपको, कैन यू इमेजिन कि आपके इस छोटे से ब्रेन के अंदर 100 बिलियन के करीब हैं वो सेल्स मौजूद हैं। उस 100 बिलियन सेल्स के अंदर आप उन एक सेल को अगर आप स्टडी करना चाहें, यू विल सी अ लॉट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर्स, और हर माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर भी उसकी लेयर, उसकी मेम्ब्रेन, उसकी कंपोनेंट, ये एक अलग फिर एक सब लेवल स्टडी हो जाती है कि कैसे आप उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। उन प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए यू नीड अ मैथमेटिकल एंड द फिजिकल फॉर्मूलाज। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, डेरिवेशंस होती हैं कि जिसके जरिए आप उसको स्टडी करने जाते हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो से आपने स्टडी की, फॉर एग्जांपल अगर आप जो हमने जितनी कोई चीज अगर दिमाग से निकाल के स्टडी करनी है तो सबसे बड़ा मरहला पहले के जमाने में यह था कि भाई दिमाग से अगर निकाले तो डेड हो जाएगी। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आपने चीजों को मॉडिफाई किया, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक बनाई, तो आप इस काबिल हो गए आप उन चीजों को स्टडी कर सकें इंडिविजुअल लेवल पर, यानी सिंगल न्यूरॉन को दिमाग से आइसोलेट करके आपने स्टडी करना। तो इसका बिल्कुल इनिशियल बेसिस जो मिलती है वो हमें 1909 के अंदर जो हैरिसन था बेसिकली, इसने एक टिश्यू कल्चर टेक्निक को डेवलप किया था ब्रेन सेल को स्टडी करने के लिए। लेकिन अगेन हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर, जब बात करेंगे